इनके जनरेशन में डर क्या है पता नहीं है। हमारे जनरेशन में डर था, और हमारे पेरेंट्स जिस जनरेशन में बैठे हैं उनको सिर्फ डर ही था। The whole idea was that we are all living in different eras. When Britishers left us, we were a very poor nation. खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, अभी पीने को नहीं है, लेकिन the whole idea is that so I have lost you and you have to lost me now. Let me speak a few words from the book as a sample. Tell you what, somebody told me, tell you one thing about Chanakya, जो सबको पता है, तो वो है सामधान दंडभेद. I'm sure all of you must have heard about it. Elders education. So if it doesn't work one way, there are many ways. तो अगर he सीधी उंगली से नहीं निकलता तो अलग उंगली से. There are many methods to achieve your goals. The second is from competition to collaboration. अगर दोनों मिलके कर सकते हैं तो हम ज़्यादा जल्दी सक्सेस हो सकते हैं. Really speaking, अगर आप चाणक्य को समझने की कोशिश करो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि the problem of any particular battle in life is here. It is never there. तो जिसको हम दुश्मन जानते हैं या समझते हैं, उसी के अगर हम लोगों ने अगर कोलैबोरेशन कर दिया तो युद्ध भी खत्म और दोनों विनर्स. इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है इनके जनरेशन में. आई डोंट बिलीव इन कॉम्पिटिशन. ये दूसरे से झगड़ा करते हैं. Thanks to the legends who are sitting on the stage for this wonderful opportunity. In my day, she taught me nowadays from the basic business knowledge to corporate qualities, everything and all. In my way, what I'm thinking is, for every entrepreneur, we should have some mentor to guide us. Me? To be honest, like I'm just 27 years old. I haven't really lived the entrepreneur life yet. I'm just a very aspiring. I'm just a guy in the process who enjoys this entrepreneurship, business, and all these new things that I have. So I can't really give you a very comprehensive idea on it. But the most difficult challenge that any entrepreneur or any aspiring businessman or woman would face is starting their business or taking the first step and calling himself an entrepreneur and making it a real thing. At it on a longer macro scale, like you have to do it because this is your true calling, this is what you are, and irrespective of the failures that you may fail tomorrow, day after, or the successes that may happen to you in your upcoming glory days, you will keep doing it because this is what is truly you, and this is what defines it. Here, people don't accept you as an entrepreneur or as someone who's doing something very different. So I had challenges like, you failed 2 years, आपको drop है, how can you motivate people and all that. And people are very judgmental when you fail in life. So the 2 years that I had dropped, एक तो engineering समझ में आती नहीं थी. And in those 2 years, then I what I programs कर रही हूँ. तो unless you have those proofs, people don't accept. I mean, people need proof for everything. Even if you are a startup, even if you are an established entrepreneur. So that was my challenge. That आपका education background वाले होना चाहिए. उसके बाद ही we accept you as a motivational speaker. Second, being a woman speaker, I had lot of challenges because of the age. कि corporate के बड़े programs नहीं मिलते हैं guys because age छोटा है, experience नहीं है, and again they see your background कि engineering failure है, तो ये क्या हमें आगे सिखाएगी. And there was one more challenge that पहले आप खुद को motivate करो. We look back and say, wow. So it's like motherhood. Getting mothers, so first time mother is a challenge, right? You don't know what to say. The day you become a mother, say, wow. Second time you go there. So for me, I've been always a person who, when I look back and say, wow. Like for example, first time I became an author, I wrote a book called Corporate Chanakya, and then I did not know how book launches happen, how writing a book happens. First book is ये देखो इधर मस्त है कि पैक करके रखा. निकल रहे हो? नहीं है इधर चल University
लड़की मतलब शी इज फ्रॉम शायनिगर कच्ची पॉलिटेक्निक, उसने डिप्लोमा उधर से किया है और वो तभी थोड़ी मतलब शी वाज नॉट दैट अटेंटिव, मतलब वो थोड़ा बंकिंग वो सब में होते हैं ना, कॉलेज में जो है नए नए घुसते हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है अरे हाँ दोस्त लोग बन रहे हैं, चिल मारना है, मजे करने हैं, तो यही होता है, मजा आता है बंकिंग करने का, तो वो सब में थी। बट एक था कि हाँ कुछ करना है, एक था कि कुछ ना कुछ विजन है, उसको कैसे परस्यू करना है वो था कि, बट उसको पता था कि डिप्लोमा उसका टाइप का चीज नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं है उसका थे, बट उसने तो भी करने लगे। सबसे मेरी बात कि हम लोग बस हमारी मैम का वीडियो है, कैन आई हैव द वीडियो प्लीज? नहीं नहीं अभी तो बहुत टाइम है, बैठ जाए अभी, कोई नहीं, इधर ही बैठ जाए। हाँ PFC श्रीमती लताजी रजनीकांत का इनिशिएटिव है। श्री दया फाउंडेशन ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। हम इंडिया लेवल पे ये प्रोजेक्ट को लेके जाएंगे जिसमें भारत के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए काम किया जाएगा। सोशल कॉज है, सेल्फ डेवलपमेंट है, लाइफ स्किल्स है। काफी बच्चों को वॉइस नहीं होता है, मतलब वो अपनी प्रॉब्लम बता नहीं पाते हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे उनका मानसिक जो डेवलपमेंट है वो, उनके सॉफ्ट स्किल्स है, उनका ओवरऑल प्रोग्रेस जो है, जिसमें पेरेंटिंग आ गया, कैसे वो उनको नर्चरिंग करना, ये सब सिखाया जाएगा और इसको हम कॉन्सर्ट के रूप में भी प्रमोट करते हैं। और लता मैम के काफी इवेंट्स होते हैं अक्रॉस इंडिया। हाल ही में चेन्नई में 2 इवेंट्स हुए, इन फॉर्म ऑफ मेला एंड इन फॉर्म ऑफ अ कॉन्सर्ट, और अभी ये बॉम्बे में फर्स्ट इवेंट उनका हुआ है। एंड थैंक यू लता मैम, आपने मुझे सिलेक्ट किया एज अ यूथ एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र, एंड ये चीज को हम अक्रॉस महाराष्ट्र लेके जाएंगे, यूथ और चिल्ड्रन को अवेयरनेस देंगे और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, बिकॉज भारत के लिए यूथ और बच्चे उनका फ्यूचर है। सो थैंक यू सो मच। और ये है PFC, आज सभी को ये हमने ब्रोशर्स दिए थे अवेयरनेस के लिए। इनकी वेबसाइट पे है पीस फॉर चिल्ड्रन, और अगर आपको कोई भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हो, अगर आपको ये इनिशिएटिव में जुड़ना हो, तो ये दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आइए भारत को एक अच्छा देश बनाते हैं। थैंक यू। नहीं के बारे में मेरे को PFC का जो कंसेप्ट है पीस फॉर चिल्ड्रन, ये मानसी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, वो इज द यूथ एम्बेसडर इन महाराष्ट्र। ये कंसेप्ट जो लता जी ने शुरू किया है, इट इज एक्चुअली फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर पर्टिकुलर कंट्री। ऐसा कहते हैं कि बच्चे जो है कल जाके भारत का निर्माण करेंगे, किसी के देश का भी निर्माण करेंगे। लेकिन होता क्या है कि बच्चों को केवल हम बड़ा नहीं कर सकते, उनको प्यार से बहुत सारा चीज़ दे के, जैसे एजुकेशन है, वैल्यूज़ है, और ऑफ कोर्स फिजिकल लेवल पे खाना पीना, वो सब देख के हमें बड़ा करना है। व्हाट आई एम वेरी हैप्पी टू नो इज़ दैट ये जो संस्था है जिसमें अभी सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, मानसी जो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, इसका जो इम्पैक्ट है शायद हमें अभी नहीं समझेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी में ज़रूर समझेगा। सो आई एम सो ग्लैड दैट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू this particular. I'm glad that the Sassy Girl is organization. I'm glad that आज the Sassy Girl के लॉन्च के साथ मेरी एक किताब चाणक्य द आर्ट ऑफ वॉर, इसकी भी रिलीज हुई। I'm thankful to the organizer. ये किताब मेरी 14th किताब है, 14वीं किताब है। मैंने काफ़ी किताबें चाणक्य पे लिखी है, कॉर्पोरेट चाणक्य, चाणक्य 7 सीक्रेट्स ऑफ लीडरशिप, चाणक्य वगैरह वगैरह। लेकिन ये स्पेशल है क्योंकि ये एक्चुअली फर्स्ट लॉन्च हमने एक युवा पीढ़ी के साथ की है, तो पूरा टीम के साथ है। और मैं चाहूँगा कि इसमें से एक बात तो चाणक्य कहते हैं युद्ध के बारे में, एंड दैट इज़ नेवर फाइट अ बैटल अलोन, टेक अ फ्रेंड अलोंग। कभी भी अकेले झगड़ा मत करना, कभी अकेले लड़ाई मत करना, किसी दोस्तों को साथ में लेके। ऐसा कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउट फॉर ए जॉब, थिंक अबाउट क्रिएटिंग जॉब्स। आजकल की पीढ़ी जो यूथ की है वो थोड़ा अलग सोचती है, और सोचना भी चाहिए। पहले की पीढ़ी में पढ़ाई करके जॉब करना, लेकिन आज की पीढ़ी पढ़ाई तो करो, बहुत अच्छा पढ़ाई करो, लेकिन जॉब देने की कोशिश करो।
तो बिजनेसमैन बनना, एंटरप्रेन्योरशिप बनना, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी पीढ़ी की। तो मैं कहता हूँ कि जैसे अपना नेशनल विजन है कि हम वी वांट टू बी a $5 trillion इकोनॉमी, वर्ल्ड में बहुत बड़ा काम करें, लेकिन ये युवा और यूथ के बिना नहीं होगा। सो आई रिक्वेस्ट कि सब जो हमारी युवा पीढ़ी है पढ़े लिखे, लेकिन अपने जो भी आइडिया है उसको अगर आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सके तो देश का बहुत बड़ा आप सेवा करोगे और बहुत लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ क्रिएट करोगे। मेरा नाम मयंक भट्टाचार्य है। मैं एक मेंस लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए डिजिटल कंटेंट बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, काफ़ी सारे मेंस लाइफस्टाइल ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूँ ताकि वी मेन कैन बी अ बिट बेटर, वी मेन कैन लर्न अ थिंग और टू मोर अबाउट मैस्कुलिनिटी एंड गेट बैक टू आवर beloved nation and give it back as much as we can. That's the whole idea. That's what I do. सर आप एक बिजनेसमैन भी है तो उसके नाते क्या कहना चाहेंगे? कम उम्र में इतना बड़ी तरक्की। कम उम्र में बड़ी तरक्की, लेकिन यार बहुत टाइम से कर रहे हैं हम, ये 8 साल से कर रहे हैं। आप आज शायद 8 महीने में देख रहे हो तो आपको लग रहा है कम उम्र, लेकिन आई एम डूइंग दिस सिंस आई वाज 21 years old। उस समय शायद किसी को पता नहीं था, उस समय शायद कोई जानता भी नहीं था, उस समय एंटरप्रेन्योरशिप इतना हिप और फैशन में भी नहीं था। नाउ इट इज, नाउ एवरीवन नोज इट एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। आज बहुत जन अपना कुछ करना चाहते हैं, बहुत जन अपना कुछ नया बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 1-2 चीज़ जाननी पड़ेगी कि भाई 1-2 दिन में आपके बिजनेस आपको करोड़पति नहीं बनाने वाला, 1-2 दिन में आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं लाने वाले। एक प्रोसेस है, एक लंबा जर्नी है। इसको आप तभी करो जब आपको पूरा इंटरेस्ट है इसमें, और इसको ज़रूर करो क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट जो भी आपकी कहानी नहीं है, आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ेंगे जिनकी आप लाइफ चेंज करोगे, जो आपकी लाइफ चेंज करेंगे। आप कंट्री को एक अलग डायरेक्शन में ले सकते हो बाय जस्ट हैविंग अ होल लॉट मोर पीपल वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ योर टीम, यू क्रिएटिंग मोर जॉब्स, यू बिल्डिंग अ बेटर इकोनॉमी एंड इट्स जस्ट अ प्रोसेस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। थोड़े टाइम के लिए सब कुछ भूल जाओ, थोड़ा पेशेंट इंस्टॉल करो एंड एंजॉय दिस प्रोसेस एज इट इज। 1-2 दिन में कुछ नहीं होने वाला, इट्स जस्ट अ लॉन्ग नाइस प्रोसेस। ये मुझे मानसी ने इंट्रोड्यूस करा इनसे, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज इट्स हाई टाइम कोई तो आके ऐसा काम करेगा, मतलब किसी को तो आगे ऐसा काम करना चाहिए था फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर इंडियन यूथ एंड दिस इज समथिंग that is going to change the country in a very, very nice way, and I'm looking forward to it in a very exciting way because this is sincerely going to change the face of the country and I believe it sincerely. अपने आप पे थोड़ा ध्यान देना शुरू करो, अपने आप पे थोड़ा मेहनत करना शुरू करो, चीज़ें आसानी से मत मांगो, चीज़ें आसानी से होने की उम्मीद मत करो। अगर आपको अब सारी चीज़ अगर सबको आसानी से मिलनी होती है तो फिर कोई मेहनत करता कौन? I mean it's just like work ethic is everything। अगर आपको मेहनत करनी है नहीं तो फिर कमाल की चीज़ें एक्सपेक्ट मत करो। और अगर आप में थोड़ी इंप्रूवमेंट है, ऐसा मत सोचो कि भाई आप सब कुछ जानते हो, देयर आर होल लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डोंट नो। आई लर्नड अ लॉट अबाउट लाइफ फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्पीकर्स दैट वी हैड नेम्ड राधा सर एंड आई हैव बीन लर्निंग अ लॉट डेली। मुझे डेली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपना थोड़ा नज़रिया बदलो चीज़ों को देखने के लिए कि भाई आप 21 साल के हो, आप बहुत सारे ऐसे लोगों से बहुत कुछ ऐसा सीख सकते हो जो आपको पता नहीं। और अपने दोस्त थोड़े अच्छे से चुना करो, अच्छे इंस्पायरिंग लोगों के साथ घूमना शुरू करो जो सक्सेसफुल हैं, जो लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, ताकि वो आपके लाइफ में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो, देन यू कैन डू अ होल लॉट गुड इन योर लाइफ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, IT इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है। मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रोग्राम्स देती हूँ, लीडरशिप पे प्रोग्राम्स देती हूँ, स्टार्टअप्स के लिए काम करती हूँ, साइकोलॉजी, पर्सनल ग्रोथ, इंडियन लीडरशिप, ग्लोबल लीडरशिप पे मैं स्पीचेस देती हूँ, सेशंस देती हूँ अक्रॉस इंडिया। 6 साल हो गए मुझे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और मैंने इंजीनियरिंग के थ्रू ही मैंने ये सब जर्नी मेरा शुरू कर दिया था। होलिस्टिक है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, पेरेंटिंग भी है, नर्चरिंग भी है, फूड भी है, मतलब होलिस्टिक उसका ओवरऑल ग्रोथ हम कवर कर रहे हैं इसमें, ताकि बच्चा जैसे बोलते हैं ना कि जब आप एक पॉट बनाते हो तो आप पॉट के बनने के टाइम ना जो भी डिज़ाइन आप बना दो, बिकॉज बनने के बाद आप चेंज करोगे तो पॉट टूट जाएगा। तो जैसे बच्चों के साथ यही होता है कि अगर आपने उसको बचपन से नर्चरिंग किया ना, बचपन से राइट तरीके से पेरेंटिंग किया तो बाद में उसका ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है, उसका फ्रूट अलग होता है। ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है और लोगों का भविष्य सुधारना है। इंडिया लेवल पे तो काम करेंगे, ग्लोबल लेवल पे भी काम करेंगे और एक बेटर फ्यूचर यूथ और चिल्ड्रन के लिए हम कोशिश करेंगे कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सके। पीस फॉर चिल्ड्रन यानी जहाँ पे शांति से बच्चे रह पाए और क्राइम से दूर रहे और अपना डेवलपमेंट करे और एक बेहतर फ्यूचर बनाए। मैं टेक्निकल बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ। मेरा बेसिक एम था ब्लॉगिंग स्टार्ट करना, इंस्टाग्राम ब्लॉगिंग फॉर फैशन एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल फॉर वुमेन्स एसेंशियल। बट TSG के वर्टिकल्स जैसे आप देख रहे हैं अपने आप क्रिएट होते गए। वी हैव TSG मीडिया प्रोडक्शन,
TSG workshops and TSG consultancy, जिसमें business consultancy, life consultancy and personal growth consultancy भी है. TSG workshops में भी different aspects है, जैसे personality development, fashion and grooming, and different kinds of workshops will be conducting in upcoming August month. Fashion designing में interest था, तो main aim was just blogging, कि blogging से start करूँगी and धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा. But कहते हैं ना, passion side passion follow करो तो opportunity knocks your door. So the same thing happened with me and TSG के verticals create होते गए and my whole team is working with me. Yeah, 100% placement का है. जॉब है प्लस उनको कुछ मतलब पर्सनली कुछ और ही बात करना है, पर्सनल कंसल्टेशन या कुछ चाहिए, उनको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वी आर देयर. हमारी कंपनी है उनको प्रॉपरली गाइड करने के लिए. जॉब तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर उनको कौन से लाइन लेना है, उनको क्या लाइन लेना, उसमें आपको क्या जॉब करना है, तो वो भी मिल सकता है हम लोग के थ्रू. पहले बस उनको थोड़ा इलैबोरेट करके बताना पड़ेगा कि हम आपके पास क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशंस क्या क्या उनको क्या चाहिए, उसके थ्रू हम लोग जॉब आपको दे सकते हैं. वही हमारा मेन है. अभी जुड़ने का सवाल है तो वेबसाइट हम लोग का अभी आज हमारा जो इवेंट हुआ, जो एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2019, हम लोग का वेबसाइट इन अपकमिंग है, ऑलमोस्ट अपकमिंग है, चालू होगा. विद इन 2 to 3 वीक्स हम लोग का वेबसाइट आ जाएगा. वही वेबसाइट में आपको हम लोग के मल्टीपल जो वर्टिकल्स हैं उसके आपको एक सेक्शन ही उसका अलग रहेगा. उसमें आप हम लोग के हर चीज़ें समझ सकते हैं. और सबसे मैंने अपनी खुद की स्पीच में बोला कि मार्केटिंग करना ना तो डिजिटल मार्केटिंग करोगा. आज के हिसाब से यूथ डिजिटल मार्केटिंग में मानता है. ऐसा कोई बंदा नहीं है जो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता है. सोशल मीडिया को हमने बनाया, सोशल मीडिया ने हमें नहीं बनाया. हम अगर सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे तो मार्केटिंग होनी ही होनी है. वही है, हम करेंगे. हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया हमको रिजल्ट्स देगा. गिव एंड टेक रिलेशन है, इसके थ्रू मार्केटिंग. तो ये स्टार्टअप सिर्फ दो ही महीने हुए हमें स्टार्ट करके. 2 months ago we started this company. प्लानिंग काफ़ी सालों से चल रहा था, 2 साल से प्लानिंग चल रहा था, कंपनी चालू करनी बट हुआ नहीं. 2 महीने पहले कंपनी फॉर्चुनेटली ऐसा बोलते ना, एक स्पार्क आया अंदर से कि चालू करना है भाई, अभी तो चालू करके रहूँगा. ये स्पार्क आया और चालू किया हमने ये कंपनी. ब्रांचेस तो सिर्फ एक ही है, वो है विक्रोली वेस्ट में है, कैलाश इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में हम लोग का खुद का ऑफिस है. वी वर्क फ्रॉम देयर. मेरी खुद की पूरी 5 लोग की टीम है, मुझे गिन के और रिया को गिन के. दे आर स्मेनिल सातों से, रितेश पोद्दार एंड शिवांग श्रीवास्तव. हमारी 5 जन की टीम, वही एक ऑफिस में हम लोग साथ में मिलके काम करते हैं. वो है विक्रोली वेस्ट में. ब्रांचेस अभी तक ब्रांचेस नहीं है. फ्यूचर है बहुत, फ्यूचर तो ब्रांचेस बहुत जगह पे सोची है, और वो फ्यूचर हमको एम हमारा हमें अचीव करना ही करना. आज का यूथ का जो विजन है, अगर वो विजन अगर उनको अचीव करना ना, उनको अचीव करना ही चाहिए. एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग से उनको चलना चाहिए. एक एंटरप्रेन्योर हमेशा सोचता है कि मैं एक कंपनी के अंदर मल्टीपल चीज़ें करूँगा और अपना नाम बनाऊँगा. एक एंटरप्रेन्योर एक चीज़ पकड़ के नहीं चलता है, उसको वो ब्रांडिंग करेगा. एक चीज़ पे वो मल्टीपल ब्रांडिंग्स करेगा, बट मल्टीपल वेज में. एक चीज़ पकड़ा है, एक नाम है, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें वो काम करेगा और उससे वो अपना ब्रांड बनाएगा. और वो आजकल के यूथ में वो पावर है उतना करने का. आजकल अगर वो अपना विजन फॉलो करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि खुद की कंपनी चालू करनी है, तो वो स्टेप उठाइए. आप अगर जॉब आपको करना है तो जॉब का स्टेप उठाइए. बट आप जॉब के पीछे भाग रहे हो कुत्तों की तरह, बट डोंट, इट्स अ रिक्वेस्ट, जॉब के पीछे भागो, बट एक सर्टेन लेवल तक. इफ़ यू आर नॉट, अंदर से आपको फील हो रहा है कि नहीं जॉब मेरा चीज़ नहीं है, तो छोड़ दीजिए. खुद का कंपनी चालू कीजिए. आप खुद का कंपनी अगर चालू करने का आपके अंदर उतना पावर है, प्लीज़ डू इट. परफेक्ट मेंटोर उसके लिए ज़रूरत है आपको. फाइंड अ परफेक्ट मेंटोर फॉर योरसेल्फ और आपके गोल्स अचीव कीजिए. आजकल गोल अचीव करना यूथ के लिए बहुत ईजी हो सकता है इफ़ दे डू दिस थिंग.